Hello everyone. Today I am going to discuss about Kirchhoff's law. There are two laws proposed by the Kirchhoffs. First one is KCL, first law or Kirchhoff's nodal law, based on law of conservation of charge. Second law KVL, Kirchhoff's voltage law, based on law of conservation of energy. It is defined in loop or mesh, that is in a closed path. As we know, there are two laws proposed by Kirchhoff's. KCL is the first law. Okay, it is always defined at node. KCL जो है एक नोड पे डिफाइन किया जाता है. अब आगे देखते हैं नोड पे इसका कैसे कंसिडरेशन लिया जाता है. ओके, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड. अब नोड आया एक टर्म्स, तो नोड क्या होता है उससे जान लेते हैं और कितने टाइप्स का नोड होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड इन एनी नेटवर्क. ओके, first one is simple node and second one is principal node. Simple node is defined as it is an interconnection of only two branches, and the principal node is defined as it is an interconnection of at least three branches. So what is the definition of KCL, Kirchhoff's first law, which is based on law of conservation of charge, is defined as in any lumped electric circuit for any number of nodes and at any time t, the algebraic sum of branch currents leaving the node is 0. Okay, अब देखते हैं कैसे इसको implement करते हैं. Suppose this is the node P. Suppose this node is P. So according to definition of KCL, in KCL, sum of leaving the current, sum of living current is equals to 0. Sum of living current is equals to 0. ओके, सपोज करते हैं ये P एक नोड है जहाँ पे नंबर ऑफ करेंट्स हैं. ठीक है, कोई इनकमिंग है, कुछ आउटगोइंग है. तो अकॉर्डिंग टू KCL डेफिनेशन, सम ऑफ लिविंग करंट इज इक्वल्स टू 0. मीन्स आउटगोइंग करंट, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट को 0 करना है. अब इनकमिंग है तो उसका साइन चेंज कर. देखो यहाँ पे I1 करंट एंटरिंग टू द नोड है एंड I2 करंट एंटरिंग टू द नोड है, बट करंट I3 इज लिविंग द नोड एंड करंट I4 इज लिविंग द नोड एंड करंट I5 इज लिविंग द नोड. सो अगर करंट एंटरिंग है तो इसको लिविंग करना है, तो जस्ट साइन अगर अपोजिट कर दें तो ये करंट लिविंग हो जाएगा. सो माइनस I1. Current I2 is also entering the node, so change the sign so that it becomes leaving the node. So minus I2, I3 leaving the node, I4 leaving the node and I5 leaving the node. Sum of all leaving current is equals to 0. So I1 plus I2 is equals to I3 plus I4 plus I4. देखो I1 plus I2 is equals to I3 plus I4 plus I5. यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ क्या होता है, दैट इज सम ऑफ एंटरिंग द करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट. ओके, मीन्स एंटरिंग करंट जो सम है वो इक्वल होगा सम ऑफ लिविंग करंट. ठीक है, यू कैन से दैट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट. वी नो दैट ओके I is equals to dq upon dt. So dq1 upon dt plus dq2 upon dt is equals to dq3 upon dt plus dq4 upon dt plus dq5 upon dt. Okay, in this equation we know that d upon dt is same for all, and we know that at a given time t, d upon dt is same for all branches. Okay, at a given time t, d upon dt is same for all branches. Okay, so from here q1 plus q2 is equals to q3 plus q4 plus q5. From here, that is sum of entering charges is equal to sum of leaving charge. Sum of entering charges is equals to sum of leaving charge. That is, in this law, means in KCL,
charge is conserved. So according to KCL, sum of all current at a node is equals to 0. अब देखो नोड पे रेसिस्टर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है और कैपेसिटर भी हो सकता है। उसके लिए करंट कैसे लिखना है? अगर रेसिस्टेंस है तो I इज इक्वल्स टू V बाई R, ठीक है। अगर इंडक्टर है तो 1 बाई L इंटीग्रेशन V dt, ठीक है। I इज इक्वल्स टू दिस मच एंड फॉर कैपेसिटर I इज इक्वल्स टू C dV अपॉन dt। KCL जो होता है, जो अप्लाई करते हैं, वो इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ एलिमेंट होता है। तो क्या है? KCL अप्लाइड टू एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इट डजंट मैटर वेदर द एलिमेंट्स आर लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिएंट। देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम KCL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस नोड पे KCL एप्लीकेबल है। Here in this example RLC, here RLC are linear, ये क्या है? लीनियर है, पैसिव, बायलेटरल है, टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स है, ठीक है। बट I ऑफ T जो है ये क्या है? नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर के साथ ये क्या है? एक्टिव, ठीक है, और ये यूनिलैटरल है और टाइम वेरिंग एलिमेंट है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। A segment of circuit is shown in the figure, this figure. If V of R is equals to 5 volt, V of C 4 sin 2t and VL is given by, इसमें VL का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सो इसमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल करंट एट द नोड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सम ऑफ ऑल करंट एट नोड बाय, इसमें VL का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सो इसमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल करंट एट द नोड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सम ऑफ ऑल करंट at node is equals to 0. According to KCL, sum of all current at a node is equals to 0. अब सपोज करते हैं ये P, Q, R, S है। अब देखो P to this node, अगर सपोज करें इसको O, ठीक है, तो इनकमिंग करंट है, नोड की साइड आ रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, मीन्स इनकमिंग करंट है। ये करंट क्या होगा? आउटगोइंग होगा, और ये वाला करंट क्या है? आउटगोइंग है। तो करंट का इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे? 2 एम्पियर करंट इनकमिंग है, P to O, Q to O ये भी इनकमिंग है, तो इसे भी आउटगोइंग करना है। अब देखो -2 इनकमिंग करंट था, तो इसको हमने आउटगोइंग किया, और अगेन फिर VR यहाँ पे इनकमिंग करंट था, इसको हमने आउटगोइंग किया, एंड C dV अपॉन dt आउटगोइंग है, L 1 बाई L इंटीग्रेशन V dt ये भी आउटगोइंग करंट है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। देखो इसमें क्या था? VC का वैल्यू 4 sin 2t एंड कैपेसिटर का वैल्यू 1 फैराड है, तो 1 इंटू d अपॉन dt 4 sin 2t। अब इंडक्टर का वैल्यू 2 हेनरी है, तो 1/2 VL dt, हमें VL फाइंड आउट करना है। दिस वन इज इक्वल्स टू -3, ये इसका डेरिवेशन लिए 8 cos 2t इंटीग्रेशन VL dt 1/2 इंटीग्रेशन VL dt इक्वल्स टू 0। इसमें क्या हुआ? -3 + 8 cos 2t 1/2 इंटीग्रेशन VL dt इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करना है? 1/2 VL dt इज इक्वल्स टू 3 को इस तरफ ले गए, 3 - 8 cos 2t, ठीक है। अब क्या करना है? इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? VL t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? VL 6 कांस्टेंट है, 0 -16 और इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? -2 sin 2t। सो वैल्यू ऑफ VL इज इक्वल्स टू 32 sin 2t, ओके।
चलो अब ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है, बट ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसे एक नोड कंसीडर करना है। अब इस नोड पे क्या है, 22 मिली एम्पियर इनकमिंग करंट, 2 मिली एम्पियर इनकमिंग करंट, 7 मिली एम्पियर इनकमिंग करंट, 10 मिली एम्पियर आउटगोइंग, 4 मिली एम्पियर आउटगोइंग, 1 मिली एम्पियर इनकमिंग, 6 मिली एम्पियर आउटगोइंग। देन ये वैल्यू पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एक्स, ठीक है, आई एक्स का वैल्यू क्या होगा। सो अप्लाई केसीएल। केसीएल में क्या है, सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और एट अ नोड इज इक्वल्स टू 0, या इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो हम ये फंडा यूज करते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन कौन सा है उसको लिखते हैं, 22 इनकमिंग, 2 इनकमिंग, 7 इनकमिंग प्लस 1। आउटगोइंग क्या है, 10 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर एंड आउटगोइंग आई एक्स। जब यहां से सॉल्व करेंगे, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ आई एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, सो द वैल्यू ऑफ आई एक्स इज इक्वल्स टू 32 माइनस 20 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 12 मिली एम्पियर करंट, ठीक है। आई एक्स का वैल्यू आउटगोइंग था, तो अगर पॉजिटिव साइन है तो मैं डेफिनेटली ये आई एक्स का वैल्यू 12 मिली एम्पियर आउटगोइंग करंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व, अब ये दूसरा एग्जांपल है। अब देखो 6 एम्पियर करंट इनकमिंग है, 7 एम्पियर करंट इनकमिंग, 2 एम्पियर करंट आउटगोइंग। आई ऑफ एक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। इसने इसका डायरेक्शन इनकमिंग दे रखा है एंड 1 एम्पियर करंट आउटगोइंग है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की तरह दिख रहा है, बट इसे क्या करना है, एज अ नोड कंसीडर करना है। सो अप्लाई केसीएल। केसीएल जब अप्लाई करेंगे, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट लिखना है। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, देखो 7 प्लस 6 प्लस आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, ठीक है। सो आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सो द वैल्यू ऑफ आई एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 13 इक्वल्स टू माइनस 10 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे माइनस 10 एम्पियर करंट का वैल्यू आया, आई एक्स का वैल्यू माइनस 10 एम्पियर आया। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली द करंट इज outgoing from the node. So the value of Ix is equals to minus 10 ampere. Actually the current is coming out of the node. Okay, हाँ, second क्या है, Kirchhoff's voltage law, KVL. KVL is always defined in loop or mesh, that is in a closed path. This law is based on conservation of energy. KVL is based on law of conservation of energy. In a lumped electric circuit, for any of its loop and at any time t, the algebraic sum of branch voltages around the loop is 0. Okay, so according to definition of KVL, Kirchhoff's voltage law, sum of all voltage in closed loop is equals to 0. all voltage, अगर resistance है तो V इक्वल्स टू आई आर, अगर इंडक्टर है तो V इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी, एंड कैपेसिटर है तो 1/c इंटीग्रेशन आई डी टी, ठीक है। सो ये गिवन सर्किट है, इसमें हमें KVL अप्लाई करना है, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस डेफिनेशन को यूज करते हैं। सो बाय यूजिंग KVL, अब देखो V ऑफ S, अब इसका इक्वेशन लिखते हैं, V ऑफ S माइनस वी आर माइनस वी एल माइनस वी सी इज इक्वल्स टू 0. सो V ऑफ S इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी. सो V ऑफ S इज इक्वल्स टू I इंटू आर वी आर एंड वी एल इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी एंड वी सी इक्वल्स टू 1/c आई डी टी, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आए। अब देखो V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। अब इसको प्रूफ करना है कि ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, कैसे इसको कहते हैं कि KVL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो V इक्वल्स टू W/Q होता है एंड I इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dt। इन सीरीज करंट इज सेम एंड हेंस चार्ज फ्लोइंग इज सेम थ्रू ऑल द एलिमेंट। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं W/Q। सपोज करो Vs को हमने क्या लिखा, W/Q, ठीक है, एंड VR को क्या लिखा, WR अपॉन Q, एंड VL को WL अपॉन Q, एंड VC WC अपॉन Q। अब देखो Q, सो W इज इक्वल्स टू WR प्लस WL प्लस WC। ये क्या प्रूफ कर रहा है, W इज इक्वल्स टू WR, WL एंड WC। सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अब देखते हैं KVL की प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज। KVL इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, linear, non-linear, active, passive, etc. present in the loop. Second properties, KVL express conservation of energy in every loop of lumped electric circuit. चलो अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, फाइंड V ऑफ X। V ऑफ X फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो 5 एम्पियर करंट ये जो है ये कुछ इस तरह से इसमें सर्कुलेट होगा। ठीक है, बट यहाँ जो है V ऑफ X यहाँ पे एक ओपन सर्किट शो हो रहा है, इसलिए इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर करंट नहीं आएगा। बट 5 एम्पियर करंट जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो मुझे नहीं मालूम है, तो इस मैश को हम कंसीडर करेंगे। अगर V ऑफ X एक बैटरी की तरह, सोर्स की तरह बिहेव करे तो ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन एनी मैश इज इक्वल्स टू, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, V ऑफ X। सो V ऑफ X, तो यहां से हमें द वैल्यू ऑफ V ऑफ X क्या मिला, 16 वोल्ट।